So in Indian cities, we can see that food is being sold in uncovered stalls beside our roads, and the dirt and pollutants from Dirt, the vehicles contaminate our food. bacteria. Student of food science, I can convince the people to eat safe food, and how can I convince the vendors to sell contaminant free foods for better health? What sustainable measures can we take to overcome this? This is from Arka Mukhopadhyay. Yeah, first thing is don't eat outside. If it is not possible, if suppose I ate a bada pav once I was in Bombay, I was with the former Prime Minister, but I had not enough money to go to a big hotel in Mumbai. So I ate roadside bada pav. The mannerisms of that people are very professional. I am giving a statement for all of you. They keep hygiene, they add correct components, and they throw away what is left over. So if that kind of culture is there in a roadside seller of food, most welcome. But if you eat momos in Lajpat Nagar, you do not eat which meat they are using. There was a scandal reported very recently. I would not go into detail of that. So choice of the right place rests with you. और जनाब सादा खाना और समय से खाना, तो ये ढाबे वाबे में खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं आपको सही कह रहा हूँ. ये हम सब चटोरे हो गए हैं. चटोरे होने की वजह से हमको बाहर का खाना अच्छा लगने लगा. ये सच्चाई है हर घर की. आज बच्चे माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खा रहे हैं. जिस वक्त खाना होता है वो मूवी देख रहे होते हैं नेट पे, वो नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं. माँ थक जाती है बुला बुला के डाइनिंग टेबल पे. बच्चे नहीं आते हैं, फिर वो रात को 2 बजे क्लाउड किचन से खाना मंगाते हैं. विच फूड सेलर्स हैव टू बी एजुकेटेड. एक 5 स्टार होटल में जब एक बंदा प्लेट धोता है तो उसके नीचे जो नीचे रखने से वो चीज लगती है, बैक्टीरिया, डर्ट, फिल्थ, which is in a washed plate goes to the bottom. When this plate is kept on another plate which is already washed, then this gets transferred to the healthy plate, washed plate. These manners are never taught in a hotel. How to keep the washed plate. That is why in house you see the plate stands are vertical. Very fine point. So आपको hygiene starts from me. If I am hygienic, I will never go towards a place which is unhygienic. So ये बड़ा simple है. Time is shooting, overshooting. I know that. But what I wanted to convey for Tikku Saab next time, our health system is also getting sick. And I have read one phrase, what was once a deeply human ecosystem driven by values of service and sacrifice has become a मार्केट प्लेस और एक ग्लोबल स्प्रेडशीट. हमारे हेल्थ सिस्टम जो बीमार हो गया है उसको भी ठीक करना पड़ेगा हमें. विद फोल्डेड हैंड्स आई एम गिविंग दिस स्टेटमेंट एंड आई विश ऑल यंग पीपल हु आर अराउंड, दे आर वेरी एंथुसियास्टिक, दे नो एवरीथिंग एंड दे शुड प्रैक्टिस व्हाट दे नो. एंड आई विश देम सक्सेस, आई विश देम अ गुड फ्यूचर एंड आई एम वेरी होपफुल दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ब्राइटर इंडिया. थोड़ा सा संभल के चलना है. अभी आने वाले 25 साल 20 साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ा सा अपनी वैल्यूज को याद रखना है, पुरानी वैल्यूज को याद रखना है जिसमें हम हॉस्पिटल जाते ही नहीं थे. देयर आर पेशेंट्स हु कम एट द एज ऑफ 90 एंड से दैट आई हैव नेवर बीन टू हॉस्पिटल. सो व्हाट दे वर डूइंग, देन आई आस्क देम क्या करते हो. एक 90 इयर्स का पर्सन आया और उसने मुझे अपनी एंजियोग्राफी दिखाई कल, और उसकी ये इस टाइप की एंजियोग्राफी दिखाई, नॉर्मल थी. 90 years. My father had a normal angiogram at the age of 94. तो अभी भी सडन कार्डियक डेथ्स अवॉइड हो सकती हैं. अभी भी हम हेल्दी लिविंग कर सकते हैं. थोड़ा व्यायाम तो करके देखिए, थोड़ा सादा खाना तो खा के देखिए, थोड़ा समय से सो के तो देखिए, थोड़ा माँ बाप का कहना मान के तो देखिए, थोड़ा स्मोकिंग छोड़िए, जंक फूड छोड़िए, अल्कोहल छोड़िए, सोफासन छोड़िए. मैं सोफासन उसको कहता हूँ जो लेटे हुए हैं, रिमोट रखा है, बियर की बोतल रखी है बगल में, पिज्जा रखा हुआ है, उठने की जरूरत ही नहीं. सोफासन है ये. इस सोफासन को छोड़ के योगासन कीजिए. मेरे जवानों, मेरे बच्चों, तुम कल का भारत हो. प्लीज बी इंस्पायर्ड by these filthy dialogues which I am uttering in front of you. These are not filthy dialogues.
दीज आर द आइडियल्स ऑफ लाइफ। तो एक बहुत छोटे से घर से निकल के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा हूं। मैंने वो जिंदगी भी देखी है और मैंने वो जिंदगी भी देखी है। तो मैं कह सकता हूं, मुझे ये अधिकार है कहने का, मैं थक के अब 8:30 बजे जाके 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा। आई रिजर्व द राइट टू टेल यू टू डू एक्सरसाइज डिस्पाइट यू आर बिजी। बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, ये सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारा सबसे पहले ठीक होना बहुत जरूरी है। राष्ट्र अपना आप ठीक हो जाएगा।